So this is the marking scheme for the business studies paper, business studies paper for 2020-21। पिछले साल से सब चेंज है, कहीं पिछले साल के सैंपल पेपर उठा के पढ़ रहे हो तुम? पिछले साल के मार्किंग स्कीम से ये बिल्कुल चेंज है। ओके, डोंट गो बाय द प्रीवियस वंस। इवन इन द टर्म्स ऑफ case studies, molded questions, it will be entirely different type this year. Question number 1 to 20 will be 1 mark, 20 questions. And this 1 mark, don't take them lightly. These 1 marks will contain everything. These 1 marks will contain fill in the blank. This will contain 1 word or 1 sentence questions. This will contain match the following. This may contain true false. This may contain multiple choice question also. कितने टाइप हो गए याद है? देख लिया आपने? Fill in the blanks. True false. True false. Whenever true false is given, then you have to give the reason also. Why it is true and why it is false. If you say a statement is true, you will also write the reason with it. Then there is match the column, rearrange, shuffle the steps दिए in a wrong order, you have to write them in the correct order. Steps in the process of organizing are, वहाँ 4 स्टेप लिखे ऊपर नीचे, यू मे हैव टू सफल इट 1 मार्क, क्योंकि उसमें तो आंसर लिखना ना आपको। ACDB जैसे करोड़पति में पूछते हैं, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो भी पूछ सकते हैं आपसे। सो 1 मार्क क्वेश्चन मीन्स थॉरो स्टडी, एंड इन ऑल द 3 सेट्स दीज 1 मार्क क्वेश्चंस आर ऑल्सो सफल्ड, ऊपर नीचे। आप किसी को भी डायरेक्ट पूछ नहीं पाएंगे बेटा, उसके में वो ऊपर नीचे होंगे सारे क्वेश्चन। 21 to 24, 3 marks. This is marks. This is number of questions. Marks, number of questions. 3 marks question. How many? 21, 22, 23, 24, 25. 5 questions. They can be direct questions. Direct. What do you mean by delegation of authority? Write its elements. Explain with elements. Question हो गया, right? Direct question it is. वो आगे भी पूछ सकते हैं। A superior passes his the power of authority to his subordinate. What is it called? पहले आप उसे पहचानेंगे, then फिर आप उसको explain करेंगे. So 5 questions are there. 2 can be direct, 3 will be bolded. 25 to 30, how many are there? 6. They are 4 marks question. 25 to 30, 4 marks question. They are little lengthier. Answer to be given in 100 to 125 to 150 words. Point wise अगर है तो easy है. Case studies है, then you have to answer each question separately. 1, 2, 3, 4 उसमें एक नंबर होते हैं सब, right? Direct question maybe 2 or 3 maximum. The last is 6 marks question. ये 20 क्यों नहीं रखा? कहाँ पर? 21। हाँ यही ना, मैं कहूँ ये क्या होगा?
ठीक हो गया? You see, earlier 5 marks questions were there. Now they are not. 6 marks question बढ़ा दिया एक. पहले 6 marks there were only 3 questions. The choice is only in the question, in the same question, question number 25. 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक करना होगा उसमें और लिखा होता बीच में. एंड द चॉइस इज फ्रॉम द सेम चैप्टर्स. ओके, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन नॉर्मली. दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू सी हाउ मेनी आर देयर. 34 क्वेश्चन, 6 मार्क्स के 4 एंड 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू डू दोस क्वेश्चंस very clearly and very very properly you have to do. Okay, so prepare accordingly. Accounts का तो आपको पता ही होगा. Orally I can tell you. Accounts question number 1 to 13, 1 mark. 1 to 13, it is 1 mark. Again they are also multiple choice, not all, few. Fill in the blanks. There also you have to do the calculation. Amount received or allotment, कुछ भी उसमें कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है. 1 to 13. Then question number 14, question number 15, 3 marks. ये भी हम आपको क्लियरली बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, 3 marks. Even I can tell you which question will be from which chapter, to be very specific. अगर आप उसको वैसे नोट करना चाहते हैं, also question number 31, 4 marks, comparative common size for 31 question. Comparative common size 31 question. ठीक हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, 20, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, 6 marks. क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, 6 marks. क्वेश्चन नंबर और एक क्वेश्चन नंबर 19, 20 और एक क्वेश्चन नंबर लास्ट 32.
Question number 20 related to debentures. 6 marks में there can be 3 questions, 2, 2, 2. Journal entries है क्योंकि डिबेंचर में collateral security, journal entries for the issue of debentures, considering in mind the terms and condition of redemption. All these things will be in the question number 20. कोई परेशानी तुम्हें? Presentation of share capital in the balance sheet. शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में भी है और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्टिंग में मींस आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, अ फर्म इज रजिस्टर्ड और ऑथोराइज्ड विद सच एंड सच कैपिटल, इट इशूज इतना, सो मेनी शेयर्स आर सब्सक्राइब, ये जो है कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ, इतने शेयर फॉरफिट किए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये पूछेंगे। फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 19, 21, 22, 6 कैश फ्लो के 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स में आएंगे। फिर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, question number 21 will be related to admission and retirement. Question number 21 will be related to admission and retirement. चॉइस आएगी, आपको कोई एक करना होगा, एडमिशन एंड रिटायरमेंट चॉइस होगी उसमें। 8 मार्क्स क्वेश्चन हो गई दोनों है जी जी। शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 22 विल बी ऑफ शेयर्स। शेयर्स में भी चॉइस आएगी, शेयर्स में शेयर्स के 2 क्वेश्चन आएंगे फुल लेंथ। अब तुम्हें जो 15 मिनट मिलते हैं, इन दैट यू हैव टू डिसाइड आफ्टर गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस वेरी नाइसली, सीरियसली, which one is easier for you. Many of the students make this mistake, क्वेश्चन ही पूरे नहीं पढ़ते, जस्ट एज्यूम कर लेते हैं ऐसे देख के क्वेश्चन को, चलो ये वाला कर लेता हूं, और बाद में जाके उनको पता चलता है द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ देयर लेवल, इट इज हार्ड, और फिर वो काटते हैं उसे, दूसरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं एंड दे वेस्ट देयर टाइम। मेरा कहने का मतलब ये है, in that 15 minute only you have to decide। 1 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं है पहले 15 मिनट में। डोंट गो थ्रू 1 मार्क क्वेश्चन until you have finished your paper। जब पूरा पेपर आप कर ले then go for 1 मार्क क्वेश्चन। सबसे पहले आपने ये देखना है एडमिशन और रिटायरमेंट में मुझे कौन सा करना है, वो भी इजी कर दिया आपके लिए, राइट। डेथ का देखिए मैंने कोई भी अभी आपको बताया नहीं। डेथ का अगर पूछा आपसे तो पता है क्या पूछेंगे कि हाउ मच शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, या हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू द रिटायरिंग द डिसीज्ड पार्टनर। तो अमाउंट जब डिसीज्ड पार्टनर को कोई पे किया जाता है तो उसके हिस्से में क्या क्या आता है आपको पता ही है। वो चीजें सिर्फ ऐड करके टोटल अमाउंट लिख दीजिए, क्योंकि उसका अकाउंट नहीं बनाना है, ना ही उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। दूसरा उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए, प्रॉफिट ऑन सेल्स बेसिस, टर्नओवर बेसिस और टाइम बेसिस, याद है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स बेसिस और टर्नओवर बेसिस। दिस टॉपिक अगर हो सकता है आपसे पूछ ले, बिकॉज 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी चॉइस होती है, ठीक है, 2 क्वेश्चन में चॉइस होती है, उसमें चॉइस में आ सकता है। आई एम गिविंग यू द ब्लूप्रिंट, दिस इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट, ओके। इसलिए इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी जो करते हैं बच्चे, दे नो व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी आस्क्ड। नाउ इज द टाइम टू focus on important things
from the exam point of view, because not many of you are giving exam for higher percentages. Many of you are giving exam just to pass. So go accordingly. अब थॉरो जाने का आपका कोई टाइम बचा नहीं आपके पास. Whatever you have done, you can only revise and you can only strengthen your minus points. कौन कौन से चैप्टर अब तो आपको पता होगा. All those who have done something, आपको कम से कम ये तो पता चल गया होगा कि कौन सा चैप्टर मुश्किल है, कौन सा आसान है, कौन सा मैं कितने दिन में कर सकता हूँ. तो उसके हिसाब से see how many days are left and what you can do. देन आपका 21, 22 हो गए. 22 में शेयर्स, 2 क्वेश्चंस फुल लेंथ, और कई बार ऐसा भी होता है शेयर्स का एक क्वेश्चन आया और में दूसरे में 3 क्वेश्चन दे दिए 2 मार्क्स में, 3-3-2 उसमें वो कई बार 4 फीचर पूछ लेते हैं, राइट. या उसमें छोटे छोटे कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट है, या कोई 4 फीचर की एंट्री पूछ ली. इस टाइप से वो क्वेश्चन होता है. 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें, 3-3-2, 8 मार्क्स में, मतलब चॉइस में. फिर आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1 मार्क ईच, 29 तक. ये बी पार्ट है. ये बी पार्ट की बात हो रही है. इन बी पार्ट देयर आर हाउ मेनी 7 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क. इन बी पार्ट देयर आर 7 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, जिसमें 2 तो कैश फ्लो के हो गए एक एक नंबर में, 2 क्वेश्चंस ऑफ कैश फ्लो ऑफ 1 मार्क ईच, 1 ऑफ रेशियो 1 मार्क, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर. उसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं 1-1 मार्क के, जो बाकी 4 बचे उसमें. तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से आप मान लीजिए 2, और आपका एक क्वेश्चन आपका जैसे कंपैरेटिव से पूछ लिया या उससे, बट मोस्टली दे आर फ्रॉम द फर्स्ट वंस. हाँ, थ्योरी वाले चैप्टर है ना उसमें, एनालिसिस वाले में सेकंड. और फर्स्ट चैप्टर में जैसे व्हाट आर द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, हेडिंग्स सब हेडिंग्स से रिलेटेड है. लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30, जो मैंने आपको बता दिया 3 मार्क्स का होगा. इसका रेशियो, रेशियो में चॉइस हो सकती है 3 मार्क्स वाले में. दोनों क्वेश्चन रेशियो के हो सकते हैं, आपको एक करना हो, और इट कैन बी रेशियो एंड फर्स्ट चैप्टर में से हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. 29, 30. 31 आपको बता दिया. 31 विल बी कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, 4 मार्क्स. कंपैरेटिव, कॉमन साइज, बोथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में 2 टाइप के क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू सी which one will be easier for you, which one can be done with more accuracy. And last is 32nd question, cash flow statement, which will be a full length question, which will be as we did today. इससे कम नहीं होगा, आप ये समझ लें, और इससे बहुत मुश्किल भी नहीं होगा. अगर आज वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, then you will be able to do cash flow questions both in practical paper also and in practical exam also. अगर आप आज वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते तो try to practice more questions, try to do the chapter, understand the chapter concepts properly. मैंने आपको बता दिया कि इतना चाहिए आपको in cash flow if you want to do well in the practical as well as in the exam. Pre-board आ रहे हैं, इसलिए I have told you the full pattern also. Okay.
कंप्लीट पैटर्न मैंने आपको बता दिया. बिफोर प्री बोर्ड आई विल गिव यू one sample paper each, and in business be very relevant and to the point. Identify हर क्वेश्चन में, in a molded question or case study, you will find this first question. Identify the function of management. Identify the structure the firm is following. Identify the promotion sales technique. तो पहले तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन को ही सही करना है. More than 60%, 70% students make this mistake of identifying it wrong. When you have identified wrong, तो आप तो उसी का आंसर लिखेंगे, और आपने सही लिखा है, बुक में भी वैसे ही दिया, आपने याद भी सही किया है और लिखा भी सही है, बट वो नहीं लिखा जो एग्जाम में पूछा था. अपने मन से लिखा है आपने, जो आपको सही लगा. इसलिए कई बच्चे जो बिजनेस में 80 में से 70 एज्यूम करते हैं, कई बार 30 नंबर आते हैं उनके, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने पूरी सीट भरी थी, बुकलेट सबके आंसर लिखे थे, कोई क्वेश्चन छोड़ा भी नहीं था. बाद में पता चलता है उसमें से 40-50% क्या हुए, इस तरीके के गलत हो गए. फंक्शनल स्ट्रक्चर लिख के आना था, लिख के आया डिविजनल स्ट्रक्चर. सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी था, वहां लिख के आया डिसेंट्रलाइजेशन. रिक्रूटमेंट था, वहां लिख के आया कुछ और. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट था, और वो लिख के आया मेरिट्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. लिख के तो सब सही आया, मतलब जो याद किया था, जो बुक में था वही लिख के आया, बट इट वाज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम. एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं फॉर व्हाट इज आस्क्ड, नॉट फॉर व्हाट यू नो. कई बच्चे जो आता है वो लिख के आते हैं, भले ही वो पूछा हो चाहे ना पूछा हो एग्जाम में. दे हैव टू स्पेंड 3 hours, they have to show to others that I am doing something, I am not sitting idle. Write what is asked in the exam, not what you know. There are no marks for that. Business में to the point, wherever you can draw diagrams, tables, कोई ना कोई ग्राफ. आर्ट आपकी कईयों की अच्छी है, यू जस्ट समथिंग विच इज अनकॉमन. कॉपीज में सिर्फ मैटर और वो भी राइटिंग भी सही नहीं है, इट विल नॉट इंप्रेस द एग्जामिनर. देयर शुड बी समथिंग विच इज नॉट कॉमन, राइट. डू इट इन सच अ वे, देन द, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंटेंट तो होना ही चाहिए, and it should be relevant one. Okay, so today I have told you about the board's marking scheme and design of question paper and how to go about it in accounts also and in business also. Hope it will benefit you. Thank you.